کریں گے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت وزیر اعظم ہاؤس میں آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کی شرکت۔ کانفرنس کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو ہر بین الاقوامی فورم پر اٹھایا جائے۔ ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر تمام جماعتوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ اعلامیے میں ایل او سی پر حال ہی میں ہونے والی بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات کی بھی مذمت کی گئی۔ اے پی سی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف جماعتوں کے ممبران کا کہنا تھا کہ کشمیر اور بھارت کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دیں گے۔ دوسری جانب ایل او سی پر کشیدگی آج بھی برقرار رہی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 3 مختلف مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پاکستان میں ہوں سیٹھی میں نصرت جاوید 051260627 اور 28 ہمارے ٹیلی فون نمبر ہیں، یہ ڈسپلے بھی ہو رہے ہیں، آپ فوراً کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی کنیکٹ ہوتے ہی اپنی بات کا آغاز کر دیں اور صرف اسی موضوع تک محدود رہیں جو زیر بحث۔ آپ ہم سے سوشل میڈیا پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/bolbolpakistan1۔ ٹویٹ کرنے کے لیے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے bolbolpakistan_ اینڈ bolbolpakistan@dawnnews.tv پہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ گل مین آپ نے بڑی محنت کر کے بڑی لگن کے ساتھ بڑی فوٹیج لگا کے ہمیں بتایا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر نیشنل کنسنسس ہو گیا، حکومت اور اپوزیشن ایک ہو گئے، تالیاں ڈنڈنا، ارے سب کچھ ڈیمولش ہو گیا، تباہ برباد کر دیا۔ پاکستان کے اندر 1 مین ڈیمولیشن سکواڈ ہے، بلڈوزر، وہ کہیں ہوں گے تو کام چلے گا۔ یس، آپ کو شبہ ہے؟ کیا کہوں میں؟ دکھاؤ کیسے بلڈوز کیا ہے ہمارے قومی ضمیر کی آواز، ریٹنگز کے شیر، ٹی وی اسٹیشنوں کے لاڈلے، اینکروں کے پیارے نے کیا فرمایا بتاؤ۔ ارے دکھاؤ گلمینے کو، دکھاؤ گلمینے کو، دکھاؤ، سناؤ برائے سارا گند ایک ہی جگہ جائے اور سولو فلائٹ ہی اب سیاست کا حل ہے۔ ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اس کی قیادت میں جو سیاسی پارٹیاں شریک ہوتی ہیں، اس کو پہلا ایجنڈا یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جناب آپ سپیکر سے کروا لیں، آپ پریزیڈنٹ سے کروا لیں۔ لیکن ایک آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا پاناما لیکس کا، وہ کس طرح اس ملک کی پالیسی میکنگ اور ملک کے مستقبل کی رائے دے سکتا ہے؟ جی دیکھیں، کیا مطلب اس کا کیا مطلب؟ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص، یعنی انہوں نے اس شخص کا نام لینا بھی پسند نہیں کیا، وہ شخص جس پر الزام ہے کہ وہ اس ملک کا تیسری بار منتخب وزیر اعظم ہے، وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ثابت تو نہیں ہوا نصرت صاحب، اس پہ ہم کیا بحث کریں گے؟ میں تو ان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا پوائنٹ ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک منٹ، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ابھی نہیں ایسا کچھ ہوا۔ اچھا چلیں، بقول ان کے پکڑا گیا۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو سیاسی جماعتیں وہاں گئی، سارے گندے انڈے، انہیں کم از کم یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ شخص جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یہ اس اجلاس کی صدارت نہ کرے، وزیر اعظم اسپیکر کر لے، صدر کر لے، صدر بیچارے کا۔ اچھا لیکن اب چونکہ سارے وہاں گئے تو اس پہ وہ مطمئن ہو گئے، ہمارے قومی ضمیر کی واحد آواز، انہوں نے کہا چنگا ہویا گڑ مکھیاں کھادا اساں بھن بنیاموں کو چٹیا سے۔ شاہ حسین جو پنجابی کے پہلے کلاسیکل اسٹیبلش پوئٹ، چنگا ہویا گڑ مکھیاں کھادا، انہوں نے کہا بہت اچھا ہوا، اب میں سولو فلائٹ کروں گا۔ سارے گندے انڈے ایک جگہ ہو گئے، اور ان گندے انڈوں میں کون شامل ہے؟ تحریک انصاف کے نمائندے اور شیرین مزاری صاحبہ، سارے گندے انڈے ایک جگہ ہو گئے۔ تو یہ گندے انڈوں کو روکنے کے لیے نتھیا گلی میں گئے تھے کل، نتھیا گلی میں، کون گئے تھے نتھیا گلی میں گئے تھے یہی صاحب، شیخ رشید صاحب، کہنے لگے توتیا من موتیا اس گلی نہ جا، اس کے باوجود گندے انڈے نے گندے انڈے کو بھیج دیا۔ اب وہ سولے اڑیں گے۔ اب یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جلسوں کا آئٹم سانگ جو ہوتا ہے، چل چھیاں چھیاں، وہ کیسے ہوگا؟ نصرت صاحب
कैसे रौनक लगेगी, पता नहीं कैसे लगेगी, पर इस पे हम बात कैसे रायविंड में अड्डा चौक में जो लोग जमा होने बताया जाएगा अगर हम सारे प्लीज मिलकर प्लीज ना रिपीट करें, छोड़ दे नुसरत साहब, लेट जाती उम्रा टिंडड़ा ड्राउन तबाह बर्बाद सैलाब आ क्या आपको जाएगा। कॉपी नहीं मिली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की स्टेटमेंट की? हम उस पर तबसरा करने वाले थे। अजी इतना कुछ और है बात करने के लिए, हम क्यों शेख रशीद की नहीं, बात लेकिन करें? ये देखो ना, जिस शख्स ने एक स्ट्राइक करने का, जाती उम्रा को डबोने का ऐसी स्ट्रेटजी बताई थी, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नुसरत साहब, हम we will not- सारे मिलके टेलीविजन पर ये बात नहीं करेंगे, हमने खुदा का नहीं तो ये टेलीविजन पे नहीं हुई, तो कितने अजीब नहीं, ये आदमी लाइव हैं, में इनके दिखाई बारे में गई। बिल्कुल बुरी बात है, क्यों दिखाई हम? क्या कोई हम क्यों शख्स रिपीट करें? इस बुनियाद पर अभी देखो कौन कौन मर नहीं रहा होगा इनको लेने के लिए, तीन रात 12 बजे सफात तक। पर- जी शेख साहब, तो आपको क्यों नहीं बुलाया गया? और ये बात करते हुए तो हमने- ये पाकिस्तान की मोहब्बत का करने वाले इंडिया क्या कर रहा है आपके साथ? कश्मीर को किसके साथ इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है? दहशत गर्दों के साथ। नहीं बीबी, बलोचिस्तान के हाँ साथ। वो तो कर ही रहे हैं, और हमारी जो सपोर्ट बलोचिस्तान में डॉक्टर मालिक की जमात के अलावा कौन सी जमात थी जिसके शिकवे शिकायत हैं, लेकिन अभी भी कहते हैं पाकिस्तान के अंदर रहना है, इंतखाबात में हिस्सा लेना है? उस जमात का नाम पता है, उसके रहनुमा का नाम पता है? कौन सी जमात? अख्तर बैंगल। हाँ जी बिल्कुल, BNP। तो क्या हुआ उन्हें? उसकी इस इसका शेख रशीद से क्या APC ताल्लुक में है? मौजूदगी का हम जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, आप बातें करती हैं That's a मुझे, fair point। नहीं तो मैंने कब शेख हम रशीद को कहा? रेटिंगों के भूखे, बात सुनो, हम कहते हैं बात कि सुनो ना, तहजीब की नुसरत बात साहब, करनी है, खुद ही ये संजीदा आपने बात शेख करनी रशीद का चाहिए। जिक्र किया, यूं खुद करके ही आपको गुस्सा आ गया, यूं करना क्यों है, कर रहे हैं? यूं कर, ये आपने सब राज कर दिया। किसने? शेख रशीद ने? हमने, टेलीविजन वालों ने। जी शेख साहब, हाँ, उन्होंने कहा सारे right, गंदे right. अंडे, सारे Can गंदे we अंडे। move on? और अब मैं आगे- कुर्बान जाऊंगा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, शाह रुकनुद्दीन आलम अभी के कहते थे नुमाइंदे, मुझे segment खत्म गद्दी है, नशीन break का साईं वक्त बल आ हाँ हाँ भला। जब गंदा अंडा वो अपनी स्टेज पे रौनक लगाने इसको बिठाए होगा, गंदा अंडा मैं हमेशा कहूंगा हाँ जी मखदूम गंदे मतलब अंडे। एक क्या सेगमेंट हालात आज हैं। भी आपने शेख साहब की नजर करना जो है ना इंसिस्ट, मतलब अभी 2 मिनट में मोहसिन का अभी आएगा हमारे कान में कि अब जरा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अब हमारा पहला सेगमेंट खत्म हो गया। आज APC थी, हम जुमेरात को यहाँ बैठे थे जब अपेरेंटली कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। नुसरत साहब आज उसके बारे में हमने बात करनी हम है। जो छोड़ें। जिद्दत करते हैं उस पे रोती नहीं हो तुम? नहीं तुम्हें तो शर्म हम नहीं करते आती ना, है हम एंकर कभी नहीं होते करेंगे, हुए? तो हमने एक सेगमेंट क्यों अभी शेख रशीद शर्म साहब के नहीं नाम आती पे? आप? नहीं मैं नहीं लेऊंगा तो बस छोड़े ना, आप बताएं मुझे कि आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, मिट्टी डालें उन साहब को, अब आगे चलें, बस नहीं होगा ये मजीद शेख रशीद आज हमारे प्रोग्राम में। इतनी संजीदा मामला चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी। आज फिर LOC पे फायरिंग हुई, इतनी इंपॉर्टेंट आज मीटिंग हुई आपको मैं शेख माफी रशीद। चाहता हूँ जो तुमने मेहनत कर रखी है। नहीं मेहनत की बात ही नहीं है, मेहनत मैं को माफी चाहता तो नहीं माफी ना चाहें आप, छोड़ दें बस उनको। लेकिन मुझे गुस्सा आया तुम्हें। नहीं गुस्सा तो आया है ना, मतलब खुद ही आपने शेख रशीद का जिक्र किया तो खुद ही आपको अरे नुसरत साहब भाई, गुस्सा आ ये गया। इसलिए तुम तो समझ छोड़ो नहीं ना, रही हो। ignore करो। आदमी अपना दीवार को क्या बताएं, क्या Can you इसमें कुछ understand? नहीं है? हम इस वक्त किस सिचुएशन में हैं? आई एम ट्राइंग टू, Can you अगर हम understand? कोशिश कर रहे हैं ना जुमेरात के दिन तुम कैसे यूं कर रहे हैं? एब्सोल्युटली, और मैं अभी भी कहूंगी, मैं अभी भी यूं कर रही हूँ कि क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे अभी कुछ पता नहीं। मैं समझने की कोशिश करूंगी अगर हम शेख रशीद साहब को छोड़ दें। चलें, अब आगे चलें इसकी बात करनी है। जी। क्या इसकी है बात इसमें करनी नुसरत साहब, है। इसमें तो कोई देखिए, आज गंदे अंडों में से एक गंदा अंडा बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे। हर यानी दफा पहली मर्तबा मौसूफ ने एक हाई प्रोफाइल इवेंट में शिरकत की। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मेरी नज़र में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली। ठीक है जी। अब मेरी पहली शिकायत ये है, ये ज़माना ऑप्टिक्स का ज़माना है। डेफिनेटली जुमेरात के दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा करके भारत के वजीर आज़म ने 2 घंटों के नोटिस के ऊपर अपनी भी हिज़्ब मुखालिफ की जमातों को बुलाया। बिल्कुल। वहाँ पे ब्रीफिंग कौन कर रहा था? जिनका मेरे ख्याल में काम था ब्रीफिंग करना, क्योंकि मिलिट्री कौन कर रहा जो उनके DG थे, डायरेक्टर जनरल वही मिलिट्री जिन्होंने ऑपरेशन। पहले भी ब्रीफिंग की थी ना उसी दिन सुबह। आज ये जो सारे लोग वहाँ मौजूद थे, इनकी ब्रीफिंग किसने की? फॉरेन ऑफिस, फॉरेन सेक्रेटरी ने, मेरे ख्याल में फॉरेन ऑफिस की थी ना ब्रीफिंग, उसमें यही बताया गया था। Why? Here is a situation. फॉरेन सेक्रेटरी की मौजूदगी जरूरी थी, यस, ठीक है, कि इसका सफारती पहलू भी है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ट्रिगर ये है कि भारत ने ये दावा किया है कि हमने कि उसने सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं। सो प्राइमरीली आज हम जिस सूरत हाल में बैठे हुए हैं, उसको ट्रिगर किसने किया है? भारत के उस दावे ने जो जुमेरात को किया भारत के उन्होंने। इस दावे ने। ठीक है। अब आप अगर संजीदगी पे आई है, मैं तो संजीदा ही हूँ नुसरत साहब। चले नहीं आए,
लेकिन एपीएस वगैरह के बात तो की थी उन्होंने, आए थे, तो आज वाकई क्यों नहीं बुलाया? दैट्स अ गुड क्वेश्चन आई सपोज। पहले जब एपीएस वगैरह की हुई थी तो आर्मी चीफ वगैरह आते रहे ना, जब वो फिर जब ये बंदे ये जब खड़े होके कहते हैं गंदे अंडे, तो ये होता है कि इन्हें इस काबिल इन गंदे अंडों को देंगे ब्रीफिंग? एक्सक्यूज मी, दिस इज द मैसेज। ठीक है, बात तो गलत है नहीं, और आई तो सपोज ऐसे बंदों की जबान सिर्फ इसी सूरत में रोकी जा सकती है। हमारी तो रेटिंग्स की मजबूरी है, क्योंकि हमने अपना काम छोड़ दिया है। हमें तो कुछ ना कुछ करके रात को धंधा करना है। वजीर आजम की उसके लिए बहुत काम का है ये आइटम सॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन जिन्हें रियासती मामला चलाने हैं, जिन्हें इस मुल्क में सियासत करनी है, उस हवाले से तो आगे बढ़ने से पहले अब आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं बुलाया? व्हाई डू यू थिंक? वो कह रहा है जी ब्रेक। चलो अलामिया के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे आज से क्या। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो मुश्तरका एलामिया जारी किया है सीपीसी के बाद उस पर भी बात करेंगे, और क्यों मैं नुसरत साहब से पूछूंगी कि उनका ख्याल क्यों है कि वजीर आजम ने मिलिट्री जो लीडरशिप है उनको क्यों नहीं बुलाया सीपीसी में, मगर वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो तो लिख के जरूर भेजें। यस अच्छा बीबी, ये जो सारे जो मसाइल हैं इनको लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप निगाह पढ़ें मुश्तरका एलामिया। अब आप मुझे चाह रही हैं कि मैं अगर संजीदा ही रहूं और लोग मुझे देख के जमाइयाँ लेनी शुरू कर दें तो मैं हाजिर हूँ। सच और इम्पोर्टेंट बातें बताएं लोगों को, मेरा ख्याल जी आप उन्हें तो यही पसंद है ना। आई थिंक बस नहीं ना बस, अच्छा प्लीज लेट्स छोड़े ना। ये एक लाइन है, डेट टू कोऑर्डिनेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट्स, कि कौमी सलामती की जो कोशिशें हैं उनमें कोऑर्डिनेशन, राब्ते को मजबूत बनाने के लिए दी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अच्छा, रिकॉन्स्टिट्यूटेड। पार्लिमान की कौमी सलामती के ऊपर कमेटी को दोबारा बनाया जाएगा। तो अभी पहले भी दोबारा ये बड़ी लूज एक कमिटमेंट है, बड़ी कमजोर कमिटमेंट है। बिलावल भुट्टो साहब का अगर आप बयान देखें जो उन्होंने वहां से आकर दिया है, जो बाहर खड़े होकर तो मौसूफ ने क्या चाहा था, ये बारीक आपको फर्क देखना पड़ेगा। The Prime Minister has promised me that certain issues that may not have been in the resolution today will be taken up in due course. The Parliamentary National Security Committee to oversee this country's counter-terrorism efforts. ये ओवरसी का लफ्ज जो कि निगहबानी करे, कोऑर्डिनेट में और ओवरसी तो बिल्कुल फर्क है, बहुत फर्क है। यस यस, वही तो कह रही हूं, ओवरसी में और कोऑर्डिनेट में बहुत फर्क है। या दैट्स इसीलिए मौसूफ को ये कहना पड़ा है कि वजीर आजम साहब ने मेरे साथ ये वादा किया है कि जो बात मुश्तरका एलामिया में नहीं आई वो भी आपके हवाले से वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ओवरसी करने के लिए, निगरानी और निगहबानी करने के लिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है उसको ओवरसी करने के लिए, ओवरसी में और कोऑर्डिनेशन में बहुत जमीन आसमान का। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपस में हम वो करेंगे, और ओवरसी का मतलब है कि कोई अब इनसे ये वादा किया था नन अदर देन इसाक डार साहब, अच्छा, कि ये शामिल किया जाएगा। वो इस लफ्ज पे बहुत झगड़ा हो गया होगा। ये नहीं हुआ, नहीं कोई झगड़ा नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, होता तो चौधरी निसार अली खान साहब ने वजीर आजम साहब के कान में कहा कुछ, क्या वजीर आजम, भाई अब मुझे क्या पता, नाम है आपको ये पता उन्होंने कुछ कहा, मैं तो क्या दूर की बात बता रहा हूँ, मक्खी वहां थी, मुझे क्या पता, ये कहा होगा कि आपकी कमीज अच्छी है या ये बटन बंद कर लें, क्या कुछ कहा होगा। एनीवे, बिलावल प्रोटेस्टेड। अच्छा, ही सेड कि मुझे वाज़े अल्फाज में वज़ीर आज़म साहब ने डार साहब को कहा जी तुसी उन्होंने कहा हाँ जी, हमने कहा ठीक। इस पे निसार साहब ने कहा कि जी देखें इस वक्त हम चाहते हैं कि सारी तवज्जो मैसेज ये जाए कि हम कश्मीर पर पूरी कौम इकट्ठी है, वो तो ठीक, तो वो मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों ओवरसीज है? अच्छा ठीक है, ओके भाई चौधरी निसार साहब ने ये कहा, ओके ये आ जाएगा ना कि भाई ये तो जरा अपनी औकात से बाहर, इनका तो काम है करारदादे पास करना। हाँ ठीक है,
तो ये ओवरसी के अपनी उसमें औकात में रहे तो आपस करारदादें मंजूर करें तो करारदाद कर दी बेचारों ने सबने मिलके, ठीक, और उस करारदाद को मंजूर करवाने में बहुत एहतमाम किया कि हम खिराज तहसीन पेश करें कि कल बशन पकड़ा गया है। देखें ना, नौकरी अपनी पूरी निभाई, और ये करते हुए सिराजुल हक साहब को एकदम से आया कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जिक्र क्यों नहीं किया। भाई साहब, आपकी जमात है इतनी बड़ी, हर दूसरे दिन धरना दे रहे होते हो, नेटो की सप्लाईज तक रोली थी, कितनी मरतबा आप बांग्लादेश का सफारत खाना है यहाँ पे, उसके बाद एहतजाज करने निकले हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, सीन नहीं किया। तो अपनी बारी जब आती है तो उस वक्त नहीं, कौन जा सकता है? कितनी मरतबा जमात इस्लामी ने 1970 से लेकर आज तक ये कहा कि वहाँ जो लोग अभी तक अपने आप को पाकिस्तानी कह रहे हैं, जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे, उनको तो कोई पूछता ही नहीं ना। वो तो अफगानिस्तान आज़ाद कराने तो चले गए थे, कश्मीर की आज़ादी के भी बहुत दावे हैं, तो वहाँ से वो 5-6 लाख बंदे जो कहते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, उनको ले आए, उनको जगह दे दें कोई यहाँ भी। बिल्कुल, क्या ख्याल है? लेकिन स्टैंडर्ड एक होना चाहिए ना, अपना अपना हिसाब बराबर करना होता है। मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस हुआ है, सबसे ज्यादा, अब आप अगर मुझसे नहीं, इसके अलावा कोई और इसमें ऐसी चीज आपको नहीं लगी जो कि किसी काम की इसमें करारदाद है, डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग करारदाद है, आनी चाहिए थी, जरूरत थी, लेकिन मैं ऑप्टिक्स के हवाले से मैं ये समझता हूं कि इस पूरी करारदाद को पढ़ते हुए, आज के पूरे रवैये को पढ़ते हुए, मुझे ये ऐलान करते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मामले की संगीनी को, क्या अभी उसके तमाम तर डिमेंशंस के साथ, अभी क्या अब भी हमें मामले की संगीनी समझ आई। आज सुबह क्या दोबारा एलओसी में फायरिंग नहीं हुई? बिल्कुल 3 दफा नुसरत साहब, एक जगह नहीं, 3 जगह। नो, मैं कह रही हूँ अभी भी नहीं समझ आई कि संगीनी कितनी है, तो फिर कब समझ आएगी? मैं तो ये कह रही हूँ अभी भी नहीं। चले ब्रेक लेते हैं। 3 सफ़ों की नुसरत साहब उन्होंने आज जारी की, नहीं, मैं कह रही हूँ इन द सेंस के लंबी है, आज इस पे मजीद भी तबसरा ब्रेक के बाद हम करेंगे। अभी तो शुरू की है और भी बातें हैं वक्फे के बाद। मैं ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा, चूंकि आप मुझे फोर्स कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं। नहीं, 2 आपने मसले बता दिए ना जो आपको लगे। नहीं, मैं देखिए इस बात को तय कर लेते हैं कि मेरा ये ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में अच्छा किया लोगों को याद दिलाने के लिए कि भाई साहब ये उड़ी शुड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे अपनी जगह, लेकिन एक सूरत हाल कश्मीर में बिल्ड हो रही है, ठीक है, और ख़ास तौर पर वहाँ पे जो बच्चे बच्चियों घरों में बैठी हुई औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है उसको याद रखना ज़रूरी था। वंडरफुल, अगर उसकी खुले दिलों से तारीफ, इंतहाई दियानतदारी से तारीफ, ठीक है, अच्छा किया उन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि मामलात काफ़ी पेचीदा हो चुके हैं। सफारती ज़बान जो है वो बहुत डेलिकेट, अपनी जगह इसको अलग एक जुबान के तौर पर कहा जाता है, डिप्लोमेटीज। बिल्कुल ठीक है, कि जैसे एक अपनी जगह एक जुबान है, एक लफ्ज पे झगड़े, कॉमा, फुल स्टॉप, क्या है, ठीक है, राइट। अब मिसाल के तौर पर, और मैं इस बात की भी तारीफ करता हूं कि अपनी कम उम्री के बावजूद, वट एवर लैक ऑफ एक्सपीरियंस के, वो ये कि बिलावल भुट्टो नजर आए कि वो एक ऐसे घराने से हैं, डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में हमारे आपके नहीं, आई थिंक उनकी नॉटविथस्टैंडिंग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नजर तो लेकिन वो एक नजर आई है, बिल्कुल नजर आई। और उस ज़िम्न में मौसूफ ने जो एक और बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें सुन लेते हैं। It was a moment of great pride for me to see that the same political parties जो शहीद मोहतरमा बनर्जी भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहते थे, आज सब पॉलिटिकल पार्टीज कह रहे हैं कि peace is the only option, because we as Pakistanis, we know that freedom for Kashmir can only come through peace. Kashmiris know that freedom for Kashmir can only come through peaceful resistance. No one can deny that this is a domestic, spontaneous, indigenous movement. जी, अब क्या मसला है? ये लफ्ज़ पीस से क्या मुराद है? अमन,
इस बात पर जोर देना कि कोई लड़ाई कि झगड़े कश्मीर में जो मूवमेंट हो रही है वो बेसाख्ता है, स्पॉन्टेनियस है, वहां से फूटी है, ठीक, मकामी है। क्यों कहना पड़ा? क्यों हमें कहना जरूरी है? इल्जाम लगते हैं क्योंकि पाकिस्तान पे। दुनिया भर के अंदर कश्मीर का मैसेज ये फैलाया गया है जैसे कि पाकिस्तान की रियासत ने कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स को आउटसोर्स कर दिया है कश्मीर की आजादी। बिल्कुल, और उनकी असली सफरिंग उसमें रह जाती है। जब वो आता है, उड़ी जैसे हमले होते हैं, ये वो होता है, तो कहते हैं जी वही वो नॉन स्टेट एक्टर्स, ये वो इधर उधर। और पाकिस्तान उससे पे क्या लग होता है कि बैकग्राउंड में चली जाती है। Therefore, to ensure कि कश्मीर की जिद्दोजहद का जो ये पहलू है, जो हकीकी पहलू है, जो असल पहलू है कि ये मकामी है, ये बेसाख्ता है, ये किसी ने ये आग नहीं भड़काई, ये वहां के लोगों के ग्रीवांस हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनकी रेजिस्टेंस। उसके लिए ये जरूरी है कि जो ये बंदा बात कर रहा हो वो ये कहे कि जनाब मैं आवाम के मुंतखब नुमाइंदे के तौर पर कह रहा हूं बिकॉज वी हैव दिस कमेटी टू ओवरसी, टेल मी कि कहां हमारी तरफ से किसी ने जाके वहां पे आग भड़काई है, बताओ मुझे। ठीक, इसलिए इसकी जरूरत है। ठीक, पर आप कह सकेंगे मतलब कि ये आप मुझे ठीक है। इस सवाल से अगर बिलावल भुट्टो जरदारी से गिला होता है और हुकूमत से भी और जो इन्होंने ब्रीफ किया है उन सब से भी, लेकिन बिलावल भुट्टो से खास तौर पर क्या गिला कि ये बात करते हुए मौसूफ ने अपनी वालिदा को तो याद किया, लेकिन एहतियातन अगर अपने नाना की एक लेगेसी का जिक्र भी कर लेते तो कोई मुजायका नहीं था। ठीक, इनके नाना की सबसे बड़ी लेगेसी है सिमला एकॉर्ड 1971 की वॉर 1972 वॉर के बाद। हाँ, 71 की जंग के बाद उसमें भुट्टो साहब का जो सबसे बड़ा कमाल ये था कि जंग हारने के बावजूद पाकिस्तान के जंगी कैदी 90,000 के करीब होने के बावजूद इस मुआहदे की रूस से भी उन्होंने भारत से तस्लीम करवाया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इशू है। ठीक, हाँ, ये कंसीड किया कि जी हमें इसे बाहमी मुज़ाकरात के जरिए हल सही है, और कोई तीसरी पार्टी उसमें फिर इन्वॉल्व नहीं होगी। इम्प्लीकेशन ये, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान के पास लीवे रहता है ना कि जुलाई 1972 में जी हमने एग्रीमेंट किया था, अब 2016 हो गया है, हम दोनों नहीं कर पाए तो अब क्या करें, कहां जाएं। लेकिन उससे ज्यादा बुनियादी बात क्या है, इसी मुआहदाए शिमला मुआहदे के अंदर बीबी ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर के ऊपर, इसके बारे में ये क्लॉज 4 पढ़ें। ये कहा गया कि इंडियन एंड पाकिस्तानी फोर्सेस शैल बी विथड्रॉन टू देयर साइड ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर, कि जो बैन अल-अक़वामी बॉर्डर पे तो वहां आ जाएंगी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में द लाइन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग फ्रॉम द सीज फायर ऑफ दिसंबर 17, यानी दिसंबर 17 1971 को जिस दिन सीज फायर हुआ, ठीक, तो जहां तक ये पाकिस्तान की फौज थी, यहां तक इंडिया की फौज थी, तो इन दोनों के दरमियान का जो इलाका है इसको लाइन ऑफ कंट्रोल तस्लीम किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब खाली लाइन ऑफ कंट्रोल ही नहीं, इस लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ये वादा किया गया कि दोनों फरीकैन, बोथ साइड विल रिस्पेक्ट ये इसकी हुर्मत को विदाउट प्रेजुडिस। मसलन उनकी अपनी जो भी विदाउट प्रेजुडिस का लफ्ज इसमें बहुत जबरदस्ती डाला था भुट्टो साहब ने, ठीक, कि कुछ भी, यानी कि इसका इम्प्लीकेशन है कि कुछ भी हो जाए, हमारा जो भी दावा हो, ठीक है, इंडिया का जो भी दावा हो, मगर उस लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे। फिल वक्त हम उस लाइन को जो ड्रॉ हुई है दिसंबर 17 1971 को, ठीक है, उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल तस्लीम करेंगे। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की, दावा कर रहे हैं, पर लेकिन ये दावा करने के साथ ही वो इस एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक दिया है, क्योंकि इसमें ये भी लिखा है कि ये मौका है जब पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये एक मुआहदा था, हमने किया। और वो कैसे हुआ है, जिस दिन जो हुआ है उस दिन उनका वो नायब वजीर है दिफा का, हाँ, वो नौजवान सा हुआ है कर्नल ब्रनर राठौर, रिटायर्ड, उसने क्या कहा एनडीटीवी को, देखे वो बरखा से बात करते हो।
anti-terrorist operation that we carried out, we went across the LOC and on specific intelligence where these groups were congregating to cross over the military carried out surgical strikes and मान रहा है destroyed the without camps prejudice there. It cross was the an LOC. anti-terrorist operation. We used just the amount of force that was We required went to neutralize across the LOC. all those who were और उसमें वो ये कह रहे हैं अच्छा और इस बात को हमारे यहाँ कुछ तो इसमें तो लिखा है कि you can't go across the LOC ओ बीबी मैं ये कह रहा हूँ ना तो उन्होंने मिट्टी में डाल दिए, इसको फेंक दिए, कि सर्जिकल स्ट्राइक की है या नहीं की दावा है, करके वायलेट लेकिन वजीर बैठ के खुलेआम कह रहा है कि जी हम तो गए हैं, हम गए हैं, सरकारी सतह पर ऐलान किया जा रहा है, ये सोच समझ कर ऐलान किया गया है। पहले तो अलोंग का आज हमारे बहुत से दीवाने दोस्त जो ट्विटर और फेसबुक की वजह से डिप्लोमेट बने हुए हैं, सुबह से मोदी का एक बयान चला रहे हैं। कौन सा वाला? वो एक तकरीब में उसने कहा कि हमने इंडिया ने कभी किसी कंट्री में इंट्रूड नहीं किया, उनका ख्याल है वो भाग गया सर्जिकल स्ट्राइक के दावे से। वो आज चल रहा है, ये देखो जो पहले की बात कर रहा होगा। और भाई वो आज सुबह से चल रहा है। नहीं चल तो रहा है, लेकिन इट वाज इन अ फंक्शन जिसमें उसने हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में ये कहा है कि जी भारत ने कभी किसी के साथ नहीं किया, वो तो हमें तो बल्कि। पर वो पहले ये भी तो कह रहा था ना कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में करना हमारी टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड अल्लाह भला इस किस्म की भी कुछ बात की थी उसने। अच्छा इसी नहीं कहा था, के जरिए कहलवाया गया है। और शिमला मुआहदे के तहत कायम हुई लाइन ऑफ कंट्रोल की सैंक्टिटी वायलेट की गई है, उसके बारे में ये एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ही की अकेले की इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैंने तो तुम्हें याद है जुमेरात के दिन प्रोग्राम करते हुए मैंने कहा था ये क्या बातें कर रहे हैं, आप पूछो सलाउद्दीन से वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब हम तो मुजाहिदीन हैं, हमारी जमीन पर यानी कश्मीर पर गैरों ने कब्जा किया हुआ है एंड वी हैव द राइट टू फाइट फॉर इट्स लिबरेशन, सो डोंट कॉल अस टेररिस्ट। तो अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल, आप जानते होंगे पाकिस्तान मानता होगा, इंडिया मानता होगा, मैं ऐसा कश्मीर नहीं मानता। तो मैंने कहा यार आप एक एटमी रियासत होते हुए किस तरह वो आर्गुमेंट ले सकते हो जो नॉन स्टेट एक्टर लेता है। बिल्कुल आपको याद है जुमेरात का दिन मेरा प्रोग्राम निकाल के, मतलब गवर्नमेंट और सलाउद्दीन की आर्गुमेंट एक। मैं तो भाई मुतासिब हूंगा, मैं पाकिस्तानी हूंगा। नहीं लेकिन उससे तो मुआहदा वायलेट तो किया है ना शेखर गुप्ता। अच्छा मैं नहीं कह रहा, ठीक है, इंडिया का सहाफी बड़ा माना हुआ जाना हुआ, इंडियन एक्सप्रेस फ्ला फ्ला फ्ला, कॉलम का नाम नेशनल इंटरेस्ट। इन एनी केस चले नुसरत आप वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। इम्प्लीकेशंस क्या हैं उस पर भी बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। हमें ट्वीट कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है #पाकिस्तान_। अच्छा बीवी, सबसे पहली बात यह है कि ब्रेक में मुझे पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा का जो आज की मीटिंग में भी मौजूद, ठीक, आप चूंकि मुझे पता नहीं कि मुझे उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया या ऑन द रिकॉर्ड, नाम ना लें, तो लिहाजा मैं उनका नाम नहीं ले रहा। उन्होंने मुझे बताया है कि नुसरत साहब बात यह है कि बिलावल ने अपनी तकरीर के आगाज में आज ये कहा कि जब उनके नाना वजीर आजम बने थे तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात आज से भी दगरगूं थे। अच्छा, लेकिन वो पूरी दुनिया में गए, उन्होंने अपना केस ट्वीट किया, तो बट वी नीड नाउ रिक्वायर नाउ इज प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, और ख़ास तौर पर उस सूरत में कि जब इस वक्त कश्मीर की जो स्ट्रगल है उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि इट इज़ इंडिजीनियस और ये वो, और उन्होंने ख़ास तौर पर इसका जिक्र किया था। अच्छा, बट मैं भी शायद बेहतर तरीके से कर सकते थे क्योंकि बात बनी नहीं, मेरा अपना ये ख्याल है कि इस बात को यहाँ पर भी कोई रियलाइज़ नहीं कर रहा कि ये जो शेखर गुप्ता ने जो बात, जो मैंने जुमेरात के दिन जिस शक का इजहार किया था कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक के दावा करते हुए बुनियादी तौर पर पैगाम ये दे रहा है कि उसकी नज़र में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इनवायलेबल नहीं रही, उसकी कोई हुर्मत नहीं रही, वो जब चाहे उसको रोक दे, उसकी खिलाफ वर्जी कर ले। चले तो उस कॉल ले लें, फिर एक और सवाल भी है। तो कह रहे हैं कॉल, हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जावेद इकबाल सैयद बात कर रहा हूँ जनाब, कराची से। जी भैया। पहली तो मेरे दो सवाल हैं जनाब। एक बात तो ये है कि आपने जो है वो अभी जो शेख रशीद साहब से बात की थी के मुताल्लिक, तो उन्होंने एक बात और कही है कि जो भी इस एपीसी में शामिल हुआ वो सब हुकूमत के हामी हैं।
जी जी तो इसका मतलब हम क्या समझें कि शाह महमूद कुरैशी और शीरीन मज़ारी भी हुकूमत के हामी? जी, उन्होंने तो यही, और बल्कि अभी गंदे अंडे का लफ्ज़ इतनी मुश्किल से बंद करवाई थी, लेकिन शेख रशीद साहब वाली, आपने फिर वो सवाल कर दिया। भाई कोई और सवाल कीजिए आप। वो देखिए, इतनी मुश्किल से पूरा सेगमेंट आपने जाया करवा दिया था। प्लीज सवाल ये है कि ये जो दो मकसद के लिए थी, या तो कश्मीर के लिए या फिर इंडिया से जो जारियत का मुजाहरा हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि हमने फिर वही बातें करी और बातें करने के बाद एलामिया जारी किया कि हम सब मुत्तहिद हैं। ये बात तो मेरी उम्र 54 साल हो गई और मुझसे जाहिर है 1-2 साल आप बड़े ही होंगे नुसरत जावेद साहब। ये बातें हम कब से सुन रहे हैं कि एलामिया जारी हो गया, इस पे अमल दरामद कब होता है? मेरा सवाल ये है। अमल दरामद का मतलब ये नहीं होता कि ये साथ ही एलामा जारी किया और साथ ही टैंक दौड़ गए। मतलब ये कि एक हर चीज़ का भाई वो एक यानी तरीक़ाकार होता है। एलामिया का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप जो हैं वो यूं जॉइंट डिक्लेरेशन आए और आप जो हैं वो टैंक उसके बाद और फिर जाग उठा है सारा वतन होना शुरू हो जाए। मुस्तफ़ा साहब, लेकिन LOC वायलेशन पे अगर वापस आए, जो आप पॉइंट कर रहे थे, हमारे एक जो व्यूअर हैं उन्होंने भी सवाल लिख के भेजा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग LOC वायलेशन। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? फॉरेन ऑफिस कुछ कर सकता है? मैं ज़मीर आलमी ज़मीर की हरगिज़ बात नहीं कर रही, लेकिन क्या कैन बी एटलीस्ट प्रोटेस्ट अबाउट दिस? कैन वी से समथिंग? कंसर्न तो है ना कि किसी की टेरिटरी वायलेट भारत करना और पाकिस्तान के दरमियान मामला बिगड़े तो एटमी जंग नहीं रुकती। बिल्कुल लार्जर अच्छा, कंसर्न। दुनिया हमसे ये तकाजा भी तो करती रहती है ना कि डू मोर। ठीक है, अब मेरे पास आर्गुमेंट ये है कि अगर कश्मीर के अंदर से स्ट्रगल हो रही है और भारत LOC को वायलेट कर रहा है, तो मैं उन लोगों को कंट्रोल कैसे करूं जिनको तुम कह रहे हो डू मोर? इट्स एज सिंपल। फेयर पॉइंट। एंड इफ यू डोंट वांट टू लिसन टू इट देन बी सॉरी, बट ये कंप्लेन करने के लिए हमें पहले ये बात कहनी पड़ेगी कि उन्होंने कोई स्ट्राइक वाइक किया भी। हेलो, कराची से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बीबी, आप टेलीविजन बंद करेंगी तो आपकी बात मेरे तक पहुंचेगी, बराए मेहरबानी। हेलो बुलाइए तो आप जी, फरमाइए ना जी। आप बात कर रही हैं टेलीविजन पे, मैं नुसरत जावेद। टाइम लगता है मेरी आवाज जाने में और आपकी आवाज वापस आने में। जी, फर्क आता है ना जी, डिबेट स्विच होता है, रूल है जी, कैमरा लॉ है। क्या और आपको देखा, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मैं ये दुआ कर रही थी कि अब आप क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं सुनाई दे रहा है नुसरत साहब। चले नुसरत साहब, टाइम अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। और अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त भी खत्म हो गया। LOC शॉप क्लोजिंग, LOC इस पे मजीद बात करेंगे बॉस। हुर्मत हर सूरत में आलमी अमन के इंटरेस्ट में है। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।